अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं। सब अपने हाथों को उठा के अपने होठों को खोल के धन्यवाद यीशु बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में सब जन। आज आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच चुके हैं, आज आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है कलीसिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहे आमीन। जितनी ताकत हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ और ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन खुश हैं परमेश्वर की हुजूरी में? आज जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, आप वचनों को सुनोगे, प्रेयर को रिसीव करोगे। आज आपके बंधनों के टूटने का समय आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ आनंद से, खुशी से परमेश्वर की प्रेजेंस में। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, विश्वास के साथ सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है और आपका फेथ जो है वो बढ़ेगा आज। तो सब बैठ जाओ पीछे, जहां भी आप मौजूद हैं, चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम चिमन मसीह है, मैं कलानौर दे रहने वाला, पिंड भंगमा मेरा। ओके, आप बताएं 19 जनवरी 2025 को अचानक से आप बीमार हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। हुआ क्या था, आप उसके बारे में बताएं। अचानक मैं बटाले आ रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਦੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੋਲ ਭਰਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਬਟਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਆਇਆ ਵਾ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਕੱਢ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮਨੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 7 ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ 7 ਵਾਰ ਕਿਹਾ। मैं बोलिया ये प्रभु दे मैं कोड़े खाना मैं चंगा हो गया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब ये इनकी जुबान जो थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और कोई एक भी शब्द बोल नहीं पाते थे। नहीं पाते। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद घर गए तो आप जब सोए तो सपने में परमेश्वर के दास हाँ जी आए और उन्होंने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। हाँ जी। और आपको सपने में ही बोला कि 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो हालेलुया। तो आपने 7 बार जब बोला, हाँ जी, और जब 7वीं बार बोला लास्ट टाइम तो जुबान वापस आ गई। आपने उसी समय उठ के अपने आप को चेक किया? हाँ जी, चेक किया। ऊंची आवाज में 7 बार कलीसिया बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में।
थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तालियों के साथ Thank you, Jesus. जीवित परमेश्वर Thank की you, तारीफ Jesus. करें। Hallelujah. 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 कितनों को गवाही समझ में आई कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है? आपका फेथ मायने करता है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, अपने दासों, अपने नबियों के चेहरे में उनके शक्ल को इस्तेमाल करके, और जब वो दूत आपके सपनों में आते हैं, आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, आप उसका रिजल्ट देखते हैं। और आज के बाद आप स्वप्न देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. और उस प्रेयर के बाद, उस इंसिडेंट के बाद ये भाई पूरी तरह से आज 2 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी तरह से हील है, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने हील कर दिया है। आज जितने भी जन ऐसे हैं जो बीमार है, चर्च में मौजूद है, हीलिंग हॉल में आप बैठे हैं, आप प्रेयर को रिसीव करेंगे आत्मा में होके, और गवाहियों को आज आप यहां से लेके वापिस जाओगे। एक एक जन आज ब्लेस होके वापिस जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मुख्तियार सिंह। कहाँ से हैं आप? ये अपने रमेशा बोदले जी, आप फिरोजपुर से हैं। फिरोजपुर जी। 1 साल पहले आप बीमार हुए थे, हाँ जी। क्या हुआ था आपको? काला पी लिया जी। ये बीमारी कैसे शुरू हुई और उस बीमारी की वजह से आपकी हालत कैसी थी? डॉक्टर साहब को जाते सी तो कहता रिपोर्ट करनी पड़ेगी जी। रिपोर्ट करके काला पी लिया बच आ गया जी। 1 साल पहले जब आपके अचानक पेट में दर्द रहना शुरू हुआ, आंदा जी, आपको चक्कर आते थे, हाँ जी, चक्कर आ रहे जी। और उस समय जब आप डॉक्टर के पास गए तो उसने टेस्ट किए, रिपोर्ट की आपकी, वो कहता फिर दवाई खानी पड़ेगी। उसने बताया कि वो दवाई काला पी लिया और आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। दवाइयाँ खाई, क्या असर हुआ दवाइयाँ? दवाई का कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं प्रभु के घर आंदा रहा, इतने इनका विश्वास रखिया प्रभु का, धन्यवाद किया। इतने प्रभु ने कैसे आए थे आप चर्च में? इतने कैसे आए थे? किसने बताया ना था? ना आप ही आया सीधा ही। किसी के कहने पर, या कैसे पता चला? साढ़े पिंड ब्रांच हैगी जो ब्रांच वाले ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ भेजा सी। आपको वहां से चर्च के बारे में पता चला? ये भाई जब इनको बताया ब्रांच के बारे में, वहां गए और वहां से इनको मेन चर्च के बारे में पता चला। ये यहाँ आए, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। कहते मेरा विश्वास बढ़ता गया। गवाहियां जब जब मैं सुनता था। 9/3/2025 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के ब्लड से मैं कमांड करता हूं, तुम्हारे जीवनों को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ। सब बीमार अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखें। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। सारी बीमारियां तुम्हारे शरीरों को छोड़ के चली जाएं अभी यीशु मसीह के नाम में। और 9 मार्च 2025 को जब ये चर्च में थे, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। आप बताएं, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? बिल्कुल ठीक हो गया जी। एकदम से उस दिन से हाँ जी, आप हाँ जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? जी, बिल्कुल। आपने टेस्ट करवाए दोबारा? बिल्कुल सही। कोई दर्द नहीं है? नहीं जी। कोई चक्कर नहीं है? नहीं जी। कोई काला पीलिया नहीं है? कितने दिनों से बिल्कुल ठीक है अब आप? हो गए 20 किलोमीटर हो गए जी। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग कोई नहीं है? नहीं। सब हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां कैसी भी क्यों ना हो, रोग आपकी जिंदगी में कैसे भी क्यों नहीं है, अगर आप जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी हजूरी में बने हुए हैं, तो वो रिपोर्ट बदल देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा, हालात बदलेंगे आपके। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए चर्च ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें, थैंक्स करें। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? रोबिन मसीह जी। कहाँ से आए आप? मैं गुरदासपुर से। आपकी गवाही है कि 11 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आप नशे में चले गए थे। जी सर। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कौन सा नशा? हाँ ब्रदर, मैं नशा करता सी बहुत जगह, ते फीम भुक्की तंबाकू जर्दा हर चीज़ का नशा प्रकार करता, मेडिसिन नशे का भी नशा करता सीगा। पर
ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ में डिवोर्स भी था पर उस तो बाद मैंने आप फैमिली बता रहे कि इसके साथ साथ आप व्यभिचार में भी चले गए। जी ब्रदर मैं वो बताएं बहुत life कैसी थी व्यभिचार आपकी? में गलत फोन आना गलत लेकिन मेरे लोकेशन से बहुत जगह ही पर मैं दस नहीं सहारा से पर मतलब कि आपके कारण आपके परिवार का माहौल पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। जी ब्रदर आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का? बहुत मैं रान रैस रहता था रोटी पानी खाता बाहर रहता था गलत फोन में रहता था लड़ाई झगड़ा भी बहुत चलता है मेरे साथ और वाइफ के साथ भी मैं बहुत नहीं था ऐसे रहता था बस। और जितना भी कमाते थे आप अपनी कमाई का 70 या 80% आप नशे में उड़ा देते थे। जी ब्रदर तो ब्रदर आपने कभी कोशिश नहीं की इन चीजों से बाहर आने की? चर्च करता था पर लेकिन खुद नहीं होता था। आपने छोड़ने कोशिश की लेकिन बड़ी की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे आप। लेकिन कोशिश नहीं हो रहा पर अगर आप ध्यान से इस भाई की हुआ कि सुने कि 11 साल से भाई नशे में थे, हर एक तरह का नशा करते थे, धीरे धीरे व्यभिचार में चले गए, वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। कई बार इस भाई ने कोशिश की कि ऐसी लाइफ से मैं बाहर आ जाऊं लेकिन बिल्कुल अपने बल से इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो आप बताएं ब्रदर आपकी लाइफ इतनी निराशा से भरी थी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, नशे में थे, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुंद्र मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता जी चला? ब्रदर मैंने किसी ने चर्च बारे दसिया सीगा तो मेरी वाइफ चर्च आंदी रही से किसी ने दसिया वो आए फिर उन्होंने आल खड़िया फिर लो मेरे रात दसे मैंने मूँह च पाते रहे आ फिर मैं उस टाइम हौली हौली मैं फिर चर्च जान लगा फिर मैं चर्च भी नशा करके आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ पर ਬੇਬੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਬਕੀਮ ਭੁੱਕੀ ਸਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਕੀਤਾ तो मैं उस टाइम में तो उसके बाद आप लगातार चर्चा आपने छोड़ा नहीं। जी सर। ऐसी हालत में लगातार चर्चा आते रहे। तो ये भाई लगातार परमेश्वर के दास के वचन को सुनते रहे। जब गवाहियों को सुनते थे तो ये भाई बोलता कि रोज अंगीकार करता था कि परमेश्वर आज मेरा छुटकारा होगा, आज मेरा छुटकारा होगा। लगातार चर्चा आते रहे। फिर 11 दिसंबर 2022 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, come out, come out, come out, कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट बोलो उन्हें। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने ब्रदर प्रार्थना की, हमने सुना कि प्रभु के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, तो जैसे वो वर्ड आपके कानों में पड़े, जैसे प्रार्थना आपने रिसीव की, तो उसके बाद का बदलाव बताएं क्या है जीवन में आपके? आप बहुत बढ़िया लाइफ आ मेरे बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना करता अपने बच्चों को पत्नी के साथ खुश हूँ तो मैं अपने अभी प्राउड मेंटी के साथ भी रहता हूँ प्रार्थना के साथ अभी मैं टाइम जे ही निकालता हूँ बस प्रार्थना के लिए बस रहता हूँ मैं मतलब प्रार्थना के बाद आप पूरी तरह से चेंज हैं? जी सर। कोई नशा नहीं करते? नहीं आपकी अभी मैरिड लाइफ अब कैसी है? आज बहुत बढ़िया मेरी फैमिली बच्चे परिवार प्लस हैं अभी। कितना टाइम हो चुका आप नशे से ऐसी अब मेरे को 2 साल हो चुका मैं प्लस होते हैं सर 2 साल से भाई पूरी तरह से आजाद है। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना के एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 11 साल पुराना नशे का आत्मा, पाप का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का हालेलुया। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, आपकी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा है, मैं गुरदासपुर से हूँ। आपकी मैरिज जनवरी 2018 में हुई थी। हाँ जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दोबारा आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। आप बताएं डॉक्टर के पास गए, क्या प्रॉब्लम बताई, आप खुद अपनी लाइफ के बारे में बताएं। हाँ जी मेरी मैरिज 2018 च हुई, उस तो बाद मैं दोबारा बेबी कंसीव करना चाहती सी लेकिन मैनू बेबी कंसीव नहीं सी हो रहा और मैं लगातार डॉक्टरों को चैक करवाया। मेरे डॉक्टरों ने टेस्ट किया और उन्होंने दसिया कि तुहाडे पानी वालियां रसौलियां वा जिस दे कारण तुसी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे और मेरे पीरियड्स भी अनरेगुलर थे और मैं ज़्यादा लगातार परमेश्वर में जुड़ी रही थी। 2016 से मैं चर्च में थी। जब बेबी नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो लोग भी आपके बारे में तरह तरह की बातें जो बोला करते थे, क्या बोलते थे, क्या आपके मन पे बीतती थी, घर का माहौल कैसा था, वो सब बताएं आप। मैं बहुत डिप्रैशन च रहिंदी सी, हर टाइम सोचती सी कि शायद दोबारा तो बेबी मेरे नहीं होएगा।
ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਔਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਮੜੇ ਤੋਂ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਔਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। कितने साल के बाद हुआ ये बेबी? जे 6 साल हो गए थे। 6 साल? हाँ जी। 6 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं जो लोग परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, कई बार आपकी लाइफ में अगर डिले आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से होती हैं ताकि आप फेथ में, आप विश्वास में और ज्यादा मजबूत होते जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें, अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर देखता है कि क्या सिर्फ आप आशीष के लिए उसमें जा रहे हैं, कुछ सिर्फ लेने के लिए जा रहे हैं, या वाकई में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो वो चीज आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही को पैदा करती है। तो 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया है। आज अपनी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े हैं, अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। क्योंकि जब ये चर्च में आए और जब परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही प्रेयर को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था, जिसके द्वारा इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया था, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही बहनें, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हें खुशखबरी के साथ आता हुआ देख रहा हूं। सिर्फ एक वर्ड अगर आप विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हैं, मानते हैं कि हाँ ये परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे लिए बोला है, तो वो आपकी जिंदगी में एक बड़ी टेस्टमनी को पैदा करता है। आज आप तैयार हो जाओ, आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बड़ी गवाहियों को आप लेके वापिस जाओगे ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया थैंक यू जीसस। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये बटाला चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम रीटा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी है। जब 33 साल पहले इस सिस्टर की मैरिज हुई तो मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। तो आज ये बहन हमारे साथ बटाला चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी को कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें डिलीवर किया। सारे जमशेद मेरा नाम रीटा अपने जीवन की वड्डी गवाही देन जा रही है कि 33 साल पहला जो मेरा ब्याह होया वा ते मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा दे बहुत ज्यादा अटैक हुंदे हुंदे सीगे ते अद्धा घंटा मेरी आवाज जेहड़ी है बंद हो जाती हुंदी। मैनूं गंदा पानी दिखाई दिंदा हुंदा, सप्प दिखाई दिंदे हुंदे ते मतलब कि अद्धा घंटा मैं बेहोश हो जाती हुंदी हां। हस्बैंड ने मैनूं उठाना ते मैं उन्हां दे गुस्से नाल बहुत ज्यादा उन्हां नूं मतलब उन्हां नाल मारपीट करनी, उन्हां नाल लड़ाई झगड़ा करना, अपने बच्चों के नाल भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करदी हुंदी हां। ते मेरे बच्चों ने कहना तुहानूं की होया, मैं कहना मैनूं पता नहीं लगदा। ते मैं इदां मैं अन्य जगहां ते भी गई, मतलब मैनूं कोई फर्क नहीं पिया है, मैनूं कितों भी नहीं मतलब कि चंगाई मिली। एक बारी मैं फांसी लगाने की भी कोशिश की ते मतलब कि घरों भी भज्जन की कोशिश की, घरों भज गई हाँ। ते फिर मैंने इन्होंने कहना लोगों ने मजाक बनाना साडा, कहना आखना इनू की हुंदा वा, ये क्यों इदां करदी है। ते मैं कहना मैनूं कोई समझ नहीं लगदी। मेरे रिश्तेदार ने मिनिस्ट्री बारे दस्सिया ते मैं इत्थे चर्च आउणा बटाला ब्रांच दे विच चर्च आउणा शुरू कीता ते मैं गवाहियां सुनदी रही, वचन सुनदी रही। परमेश्वर दे दासी ने जदों मेरे उत्ते लेहण कीता ते उस दिन तो मैं दुष्ट आत्मा तो व्यभिचार तो बिल्कुल आजाद है। इस वड्डी गवाही दी मैं परमेश्वर दे दास और दासी दा धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
इस बहन ने बताया कि इनकी लाइफ टोटली डिप्रेस हो चुकी थी, ये डिप्रेशन में जा चुके थे, हमेशा इनके माइंड में सुसाइडल थॉट आते थे। फिर जब इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, इनके रिश्तेदारों ने भी इनको बोला कि तू खामरा चर्च जा, तो इन्होंने लगातार इस चर्च में आना शुरू किया। और 17 मार्च 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 33 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और आज ये बहन टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुनैना। कहाँ से आए आप? मैं टैपी पिंड दी रहन वाली हाँ ते मेरी मैरिज 2018 च होई सी ते मैं 5-6 महीने बाद प्रेगनेंट होई सी ते मैनू गंदे सुपने दे दौरान ते सुपना गंदा आंदा सीगा कि मिसकैरेज हो गया, तो वही मेरे नाल सवेरे होके सच हो जाती सीगी। मतलब कि मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे? हाँ जी। तो उसके बाद जब पहली बार 2019 में आप प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी। और शैतानी सपना आया आपको? हाँ जी। और उसके बाद मॉर्निंग क्या हुआ फिर जैसे आप उठे? तो मैं ब्लीडिंग हो गई ते मैं सोचा भी वे सपने च आया तो मैं सवेरे मेरे नाल सच्ची हो गया भी ये की होया। तो मैं आपदे जदों घरदियां नूं दस्सिया ते वो कहंदे कोई गल नहीं, ये तो पहला सीगा ते तू होर ट्राई होगा तो फिर हो जाऊगा। मतलब कि जब आपको ब्लीडिंग हुई तो पहली प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज हो गया? हाँ जी। तो उसके बाद सेकंड टाइम आपका प्रेग्नेंट हुए? फिर मैं 5-6 महीने बाद फिर मैं प्रेगनेंट होई, फिर उदा ही सुपने दे दौरान मेरे नाल ब्लीडिंग हो गई तो फिर मिसकैरेज हो गया। मतलब 1.5 मंथ में, प्रेगनेंसी के 1.5 मंथ में फिर आपका मिसकैरेज हो गया? हाँ जी। तो 2 मिसकैरेज आपके लगातार हो चुके थे, तो उस समय माहौल कैसा था घर में या पर्सनल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा आपके? तो फिर मेरे घर में सब बोलते थे कि ये क्या होता कि मतलब प्रेग्नेंट होके ऐसे कैसे। फिर मेरे लेके घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है मेरी बीवी को, तो तुसी ना ਇਹਦਾ चेकअप कराओ। तो फिर मैं जो चेकअप कराउण गई तो वो कहंदे भी थोड़ी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है, तां करके हुंदी है, तो तुसी कमकार घट करया करो भी तां थोड़ी भी प्रेगनेंट सही रहूगी। तो मैं घरे सारा काम सही करती सी, मैनू कोई घर दे काम करन नहीं दिंदे सीगे, ना मैं पहाड़ चकदी सी भी रेस्ट करदी सीगी, रोटी पानी वधिया खांदा सी, तो फिर तां भी मेरे नाल इदां हो जांदा सी। तो क्या बता रहे कि आपने लगातार कितने डॉक्टर भी आप चेंज करते रहे? मैं 3 जगह गई, 3 डॉक्टरां कोल गई सीगी, लगातार मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। तो आप बता रहे कि इसका इफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी पड़ा? हाँ जी। लड़ाई झगड़ा हो चुका था ते परिवार हाँ में? जी, मेरे घर वाला मैनू फिर नहीं कदर करदा सी, फिर मैनू बोलदा हुंदा सी जे तेनू जवाक नहीं होया तो मैं तेनू रखूंगा नहीं। मतलब कि इस बहन की मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, 2 मिसकैरेज हो चुके थे, लगातार मेडिसिन भी खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो घर वाले लोग बातें करते थे, रिश्तेदार भी इन्हें बातें करते थे। तो आप सिस्टर बताएं कि आपकी लाइफ इतनी निराशा में थी, तो जब कोई भी हल नहीं आपको मिल रहा था, तो यहाँ के बारे में फिर आपको कैसे पता चला अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में? मेरी मासी इत्थे आउंदी है खामरा चर्च, वो भी उन्होंने ही दस्सिया मैनू, कहंदे भी तू भी चल उत्थे भी सारे दे नाल जेड़ा हुंदा उत्थे मतलब ब्लैस होके जांदे भी तू निराश होके नहीं आएंगी। तो मैं यही विश्वास करके आपदी मासी नाल मैं बस ते आ गई लुधियाने तो, मासी दे घरे आई, फिर मेरी मासी मैनू इत्थे लेके आई, कहंदी मैं तेरा किराया लाऊंगी तू मेरे नाल चल भी उत्थे सारा हल हो जांदा, तू ना निराश हो। तो फिर मैं इत्थे आई तो मैनू जेड़े परमेश्वर दे दास ने उन्होंने परवरिश की कि जेड़े बेबी नहीं है जे वो पेट 'च हथ रखन, तो मैं पेट ते हथ रखिया तो कहंदे वो अज बेबी दे नाल ब्लैस होके जाणगे। अच्छा, वो जो दिन था वो 15 जनवरी 2023 का दिन था, जैसे परमेश्वर के दास ने सिस्टर बता रहे कि प्रार्थना की और बोला कि अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, परमेश्वर तुम्हारे गर्भ को जीवित करेगा और तुम्हें ब्लेस करेगा, और उसी प्रार्थना ने इस बहन को ब्लेस किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद, बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है।
रिसीव करो जो कुछ नहीं है उसे आज इस चर्च से अनॉइंटिंग के साथ आमीन बोल के। तो सिस्टर आप बताएं कि जैसे परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के वर्ड बोले, वचनों में से प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताएं कि क्या हुआ फिर मैनू एकदम तो ना घबराहट बहुत जोर दी हुई। मैं कि मेरे नाल घबराहट क्यों हो रहा है, इन्ना चक्कर आ गया कि मैं डिग गई थल्ले। तो फिर मैनू समझ ना आया। फिर मेरी मासी ने चक्किया, मासी कहती उदा ही हो गया, कोई ना तेनू परमेश्वर ने छो लिया वा। मैं फिर बहुत खुश हुई, मैं क्या मैनू परमेश्वर ने छोया वा। तो फिर मैं निराश नहीं हाँ। फिर मैं बहुत खुश होके घरे गई। तो फिर जब मैं घरे गई तो एक हफ्ते बाद मैं टेस्ट किया। 5 साल बाद मैं टेस्ट किया कि मैं प्रेगनेंट हैगी आ। तां भी मैनू ये हुंदा सी कि मेरे सुपने के दौरान मेरे नाल इदां हुंदा किते फिर तां नहीं इदां होएगा। ते फिर जदों मैं किया, फिर दूजा चलिया, तीजा चलिया, नौवां, फिर मेरा ये मुंडा जिहड़ा मेरी गोद 'च आ ये 1.5 साल का हो गया। 9वें महीने 'च पूरे 2 साल का हो जाएगा। परमेश्वर ने मेरे नाल इन्नी वड्डी आशीष दिती है इस खामड़ा चर्च दे विच आके कि मेरी निराशा सारी दूर हो गई। ते मैं आपदे घरदियां नूं इन्ना प्यार करदी हां ते मेरे वो भी मैनू बहुत प्यार करदे, बहुत रिस्पैक्ट करदे आ। ते मैं भी परमेश्वर दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां। जिन्हां दे बेबी नहीं है वो इत्थे आण ते बेबी दे नाल ब्लैस हो के जाण ते सारे आपदी निराशा नूं इत्थे छड्ड के जाण ते खुशियां लेके जाण। तारीफ करी के लिए सर, थैंक यू जीसस, बोलो हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आप बताएं कि मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर आपको बेबी के साथ ब्लेस किया? पूरे 5 साल बाद। प्रार्थना के कितने टाइम बाद आप प्रेग्नेंट थे? प्रार्थना के बाद एक हफ्ते बाद। अब हाँ जी, ये सच बता कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, 1 हफ्ते बाद चेक किया, 5 सालों में सिस्टर प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ प्रभु ने संभाल के रखा और इस बहन को परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो अपनी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते हैं उस जीवित परमेश्वर के लिए। तारीफ करते हैं सब तक इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही को हम सुनेंगे। ब्रदर प्रकाश की ये गवाही है और इनकी गवाही के पिछले 35 साल से ये भाई नशों में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुलीप और भुक्की का ये नशा करते थे। बहुत ज़्यादा लाइफ इनकी नर्क बन चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस नर्क भरी लाइफ से आज़ाद किया है। जय मसीह दी। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा गुरदासपुर ब्रांच दे विच। 16 साल की उम्र दे विच मैं मतलब नशा करना शुरू करता ही, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, भुक्की। तो मैं मतलब जिन्ने भी कमाता ही मैं अद्धे विच अद्धे खा जाता ही। तो घरदियां ने मेरा मतलब विआह करता। विआह तो बाद जदों मेरी घरदी नूं पता लग्या तो मैनूं रोकदी ही। जदों मैनूं रोकदी ही तो फिर साडी आपस विच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर वो रुस के पेके चल जाती है। मेरे यार दोस्त ने मैनूं दस्सिया कि अंकल नूरुल्ला मिनिस्ट्री बारे। पापा ने जो दुआ प्रार्थना की तो मेरा मतलब सही हो गया है जिंदगी। तो मैं माड़ी तो आज़ाद हो गया। मैं बिल्कुल आज़ाद है। सारे मेरे भैन भरा मैनूं जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इस भाई की गवाही को इनके मुंह से सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 8 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया है। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस भाई को 35 साल पुराने नशे से आजाद किया है। जोर से अपने हाथों को उठाते परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर के कामों को करते जाते हैं और आपको समझ आती है कि हमने कैसे परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, और परमेश्वर के दासी अक्सर बताते हैं कि आपका बोया गया बीज जो है वो आपकी जिंदगी में किस तरह से फलता है, किस तरह से वो बड़ा पेड़ बनता है, कैसे फल, कैसे रिजल्ट जो है आपकी जिंदगी में आता है। आपका बोया गया बीज कभी भी वो फेल नहीं होता, ये याद रखें, क्योंकि आप उस जमीन के ऊपर बो रहे हैं जो एक उत्तम भूमि के रूप में परमेश्वर ने हमें दी है। और इस सेवकाई में जब आपने बीज को बोते हैं तो 100%
वो परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए लोग अपने बीज को बोने के बाद हमेशा वो गवाहियों के साथ आते हैं, वो ब्लेसिंग को लेके आते हैं। आज भी बहुत सारी टेस्टमनीज जो यहाँ पे हैं, ब्रांचेस में हैं, कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जो टेस्टमनीज यहाँ पे हैं, इनके लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनमें से जैसे कि ब्रदर अजय की टेस्टमनी है, अमृतसर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने सेफ्टी ऑफ हिस एग्जाम इनका जो क्लियर किया और उसके बाद एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर मनप्रीत की टेस्टमनी है, ये मोगा के रहने वाले हैं। फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सिस्टर अमनदीप, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया और परमेश्वर ने अपने घर के साथ इनको ब्लेस किया, अपनी प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए और लगातार बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने उसका रिजल्ट इनकी ज़िंदगी में दिया है। आज अपने घर के साथ ये ब्लेस हुए हैं। सिस्टर रंजीत की टेस्टमनी है, ये इनकी बेटी की गवाही है। ये नवांशहर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी बेटी को यूएसए के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर अमनप्रीत कौर, ये इनके बच्चों की टेस्टमनी है, होशियारपुर के ये रहने वाले हैं। बेटे को फर्स्ट पोजीशन जो 98% मार्क्स के साथ ये ब्लेस हुए और बेटी को थर्ड पोजीशन 90% मार्क्स के साथ, यानी एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आपका जुड़े रहना परमेश्वर की प्रेजेंस में आपकी ज़िंदगी में हमेशा फल को लेके आता है। परमेश्वर के दास ने एक वर्ड बोला था कि आपके बच्चे जो है वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ आएंगे। आज कितनी सैकड़ों गवाहियां हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने उन बच्चों के ऊपर अपना फेवर दिया, बच्चों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनके लिए आशीषों के रास्ते को खोला है। तो आप जो लोग वफादार, ईमानदार और जिम्मेवारी के साथ इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, तैयार हो जाओ, जल्दी आप खड़े होंगे पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम अंजलीना है। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 14 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ आप ये बताएं कि जब 14 साल पहले आप किराए के मकान पे रहते थे, आप ब्रदर उस समय काम क्या करते थे, फाइनेंस कैसा था आपका? मैं बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर हाँ। ओके। उस टाइम साडा काम थोड़ा इन्ना नहीं कह सकते हाई लेवल सीगा, बट हुण मैं वर्ल्ड वाइड दे नाल काम कर रहा। क्योंकि आप बताएं जब पहले की बात है, 14 साल पहले के बारे में हम पहले आपसे पूछेंगे। उस समय आपका ड्रीम था कि आप फॉरेन में जाएं जी, आपने फिर अप्लाई किया, क्या हुआ था उसके बारे में बताएं सारा। 12 साल पहले ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ। क्योंकि 2012 में जब आपने फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया तो आपको लोन लेना पड़ा था। हाँ जी, बैंक से कर्जा उठाया जी, और पूरी फैमिली का आपने अप्लाई करा जी। क्या रिजल्ट आया उसका? रिजेक्शन मिली, रिफ्यूज कर देता उन्होंने, पूरी फैमिली का वीजा रिफ्यूज हो गया। जी, जी। और जो लोन लिया था वो कर्जा चढ़ गया आपके वो ऊपर। कर्जा चढ़ गया। और 5 साल मैंने उस चीज का जो ब्याज होता 5 साल देता मैं। तो वो उन 5 सालों में आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। बहुत। कैसी लाइफ थी उस समय, मन में क्या चलता था? मन में यही चलता था, काम क्या सोचा था, क्या प्लान, वो बना नहीं। तो उसके बाद हमने बहुत एब्सेंट रहते थे, तो मेरी वाइफ बोलती थी पहले हम जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे वो फिर में हमें वो आशीष देगा, तो फिर हम उसका जी उससे पहले जब आप ये सोचते थे कि पता नहीं हम अपना घर ले भी पाएंगे जी, सिस्टर आप बताएं उस समय मन में क्या चलता था अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देख के? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਐਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ बेनती आ कि सारे प्रभु दे घर आओ और बरकतां लो। और सानू प्रभु ने एडियां वड्डियां गड्डियां नाल वीज़ियां नाल आस्ट्रेलिया दा वीज़ा, न्यूजीलैंड दा वीज़ा और इंग्लैंड दा वीज़ा असीं एक वीज़े तो तरसदे सी, प्रभु ने सानू 10 वीज़ियां नाल ब्लैस कीता आ। और असीं एक गड्डी तो तरसदे सी, प्रभु ने सानू 2 गड्डियां नाल ब्लैस कीता आ। प्रभु का बहुत धन्यवाद। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में। हौसला हर दे नहीं हुंदे, ऊंची आवाज में नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां बंदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हो सकदा रंग उठ जावे कलियां दे फुल्लां तो, यसू मिटन नहीं देता कदे हासे फुल्लां तो। हो सकदा रंग उठ जावे कलियां दे फुल्लां तो, पर यसू मिटन नहीं देता कदे हासे फुल्लां तो। यसू दे बंदियां दे, यसू दे बंदियां दे, यसू दे बंदियां दे एड़े दुख करदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां बंदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। ऊंची आवाज अखां बंदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि एक टाइम था जब खाना खाने के लिए भी पैसे घर में नहीं होते थे। आप 2012 में परमेश्वर के दास से आप मिले थे, क्या क्या बोला था उन्होंने आपको? उन्होंने यही बोला था कि पहले उन्होंने यही दसिया कि तुसी पहला प्रभु दे राज ते धर्म दी खोज करो, बरकतां पिछे पै के मिलणगियां। ते असीं अज तो प्रभु दे राज ते धर्म दी खोज कीती आ ते अज बरकतां इन्नियां आ कि सांभण लई जगह नहीं आ। और सारे जो सारे कर्जे थे वो सारे कर्जे भी खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गए हैं। तारीफ करें परमेश्वर की एक हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आप सीरियसली पकड़ लेते हैं, परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली पकड़ लेते हैं कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाइबल बताती है दुनिया की सारी वस्तुएं वो तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी, वो तेरे साथ ऐड कर दी जाएंगी। आपका वर्ड को सही रीति से फॉलो करना, परमेश्वर को पकड़े रहना, कर्जा गरीबी वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे होने जा रहे हो कलीसिया, ऊंचे हालेलुया। मंजिलां नूं पा लेंदे ने, ओ मंजिलां नूं पा लेंदे ने, जग जितदे यसू दा नाम लैके। मंजिलां नूं पा लेंदे ने, जितदे यसू दा नाम लैके। मंजिलां नूं पा लेंदे जितदे यसू दा नाम लैके। हो हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इन गवाही के लिए। और भी बड़े बड़े कामों को हम देखते रहेंगे परमेश्वर के। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? पायल, कहाँ से आए आप? बटाला ब्रांच से। आप कि 10 साल पहले आप बीमार रहना शुरू हुए, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम आई आपकी बॉडी में, कैसी हालत थी आपकी? मैं ना 5th क्लास में पढ़ती थी, तब से ना मेरे हार्ट में ना पेन हुई एकदम। और मैंने घर जाके ना अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मेरे ना हार्ट में बहुत पेन हुई। मम्मा ने कहा कि वैसे हुई होगी, कोई बात नहीं, तू प्रेयर कर। मैंने प्रेयर की तो अगले दिन नेक्स्ट डे ऐसे होती रही तो आप बता रहे कि आपकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी कि आप रेगुलर स्कूल तक नहीं जा पाते थे? नहीं जा पाती थी। जब डॉक्टर के पास गए सिस्टर, डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको? डॉक्टर रिपोर्ट्स करवाई लेकिन नॉर्मल ही आती थी, मेडिसिन देते थे, मेडिसिन खा लेती थी लेकिन कोई आराम नहीं आता था।
बाकी लगातार आप मेडिसिन भी खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं आप बता रहे कि आपके हार्ट में इतनी ज्यादा पेन थी, लेफ्ट बॉडी में स्टार्ट हो चुकी थी पूरी बॉडी में आपके पेन, जी कि आपको हाथ तक नहीं आपका लगता था वहां पे। नहीं लगता था। और सिस्टर इसके कारण आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा सिस्टर? मेरी लेफ्ट साइड जो थी ना वो सारी पेन ही रहती थी, दर्द ही होता रहता था। आप बता रहे कि आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते थे? नहीं खा पाती, डॉक्टर ने सब मना कर दिया, चाय तक मना कर दी थी। आपको खाना पचता तक भी नहीं था? नहीं पचता था, तब डॉक्टर भी आ जाती थी। हाँ, तो डॉक्टर भी आप चेंज करते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि आपकी जो आप बता रहे कि आपको महसूस कैसे होता है सिस्टर? आप बता रहे कि जैसे कोई सुइयां मार रहा है, बता रहे कि जी कैसा महसूस होता था? ऐसे लगता था कोई ब्लेड मार रहा है हार्ट पे, कोई ब्लेड से सादे से चीरे लगा रहा है, आपको ऐसा फील होता था जी ऐसे कि फील कोई होता सुइयां था। मार रहा है? इतनी ज्यादा आपकी गंभीर हालत थी। तो आप बताएं कि आप इतने ज्यादा बीमार थे सिस्टर, तो आपको कभी उम्मीद थी कि मैं ऐसी लाइफ से बाहर आ पाऊंगी? मेरा फेथ परमेश्वर पर ही था, मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, पहले से आप चर्च के साथ जुड़े हुए थे, अनकुंद्रलाम निश्चय के साथ? सिस्टर लगातार चर्च जाते रहे, तो उनका फेथ था कि डॉक्टर जीसस मुझे हील करेंगे। तो आप बताए सिस्टर फिर परमेश्वर आपको हील कैसे किया? मैंने लेहैंड फॉर्म भरा और लेहैंड करवाया मम्मा से, तो अगले दिन मैंने ऐसे चेक किया तो मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, 13 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो उसके बाद बताए फिर क्या हुआ? मुझे एकदम हल्का महसूस हुआ और मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग चेक किया तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं एकदम शॉक्ड थी कि मतलब ये कैसे हो गया। मैंने मम्मा को बताया, मैं कहने का मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने ब्रदर को बताया, सब शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश भी थी कि मैं बिल्कुल ठीक होगी। तारीफ करे लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है अब? मुझे 5 मंथ हो गए। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? कोई मेडिसिन नहीं, कोई दर्द नहीं होता मुझे। उस परमेश्वर की दासी के लेहन के बाद आप पूरी तरह से ठीक है? बिल्कुल ठीक। तारीफ करे लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस डॉक्टर जीसस करें थैंक यू जीसस बोले। वो यहोवा राफा आपको हील करने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर, थैंक यू जीसस बोल रहे हैं सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा चर्च ब्रांच से सिस्टर राज बाला की हमारे पास आई है और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राज बाला है और मैं राजस्थान से हूँ। 2014 में मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बहुत खांसी आती थी, चलने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और मैं एक कदम भी चल नहीं पाती थी। जब चलती थी मेरी सांस चढ़ती थी और मुझे मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ, मैं बहुत परेशान हो गई थी इन सब से। और मतलब डॉक्टर ने मेरा खट्टा तल्ला ठंडा सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने दवाइयाँ बहुत खाई लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिलता था। पंप लगे थे वो लेते थे लेकिन फिर मुझे कोई भी आराम नहीं मिलता था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मैं रोती थी देख करके मैं कब ठीक हो पाऊंगी, मैं इन सबसे बाहर कैसे निकल पाऊंगी। बहुत परेशान हो गई थी और मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पाती थी। मेरी बड़ी बहन घर का सारा काम करती थी, वो भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब 2023 में मैंने YouTube के द्वारा अंकुरलाम मिनिस्ट्री की मीटिंग को देखा तो उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ा कि हाँ मैं भी यहाँ जाकर चंगी हो सकती हूँ। फिर मैं मिनिस्ट्री से जुड़ी रही और फिर 14 जनवरी 2024 को प्रभु की दासी के द्वारा मेरा लेहन हुआ था। उस दौरान में पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई खांसी नहीं आती, कोई सांस नहीं चढ़ती, मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, मैं घर का सारा काम भी करती हूँ। परमेश्वर को मैं सारी महिमा देती हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बैंड के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं।
और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया और उसी समय वो 10 साल पुराना अस्थमा इस बहन को छोड़ के गया। और उसी समय जो बहन थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। 8 बार इन्हें एडमिट करवाना पड़ता था। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की उसी समय दौड़ के चेक किया और वो 10 साल पुराना अस्थमा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन से 1 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से बहन आजाद है, पूरी तरह से हील है। एक भी बार इन्होंने मेडिसिन नहीं खाई, पूरी तरह से फ्री है। जोर से इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा कि यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, बल्कि पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर ने इस बहन को छुटकारा दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। कहां से हैं आप? मैं जलंधर तो है मकसूदा। 5 साल पहले आप जॉब पर थे और काम करते समय जॉब पर थे जब, तो आपकी राइट साइड ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। जी सर। क्या हुआ था आप बताएं खुल के। सर मेरी बांह ਨੂੰ ਭਾਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਰਮੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ है। और उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे। मैं टोटली बेड पर चला गया सी। मेरी फाइनेंशियल हालत भी बिल्कुल कमजोर हो गई सी। मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ देना बंद कर दिता सीगा क्योंकि इन्हें मेरे तो पैसे मंगने हैं। लेकिन उस तो बाद मैं किसी कारण करके नीचे गिर गया, जिहड़ी कि मेरी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई। उस तो बाद आपने कितने डॉक्टर बदले थे? इन डॉक्टर बारी कीते। तीसरे डॉक्टर ने मेरी थेरेपी की। उस तो बाद मैनू बाकर से चलने लई कहा गया, गाइड किया उन्होंने मैनू। फिर वो बाकर चलते चलते मेरी रीढ़ की हड्डी से सट लग गई, जिस मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ये भाई जब डॉक्टरों ने इनको वॉकर का सहारा लेके चलने के लिए कहा तो इन्होंने जब वॉकर के सहारे चलने की कोशिश की तो बिल्कुल चल नहीं पाए, गिर गए। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी, वो फ्रैक्चर हो चुका था। और जब आप गिरे, रीढ़ की हड्डी पे फ्रैक्चर हुआ, उस समय फिर हालत कैसी थी? फिर मेरी हालत बहुत खराब हो गई सी। मैं बेड पे चला गया सी। क्या कहना था डॉक्टर भी, अब क्या होगा आपके साथ? डॉक्टर साहब कहते कि तेरा 3 साल इलाज चलूगा। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ तेरी रीढ़ की हड्डी आ ਇਹਦੇ ਤੇ सख्त अपने बेल्ट लगा दी जाऊगी, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ तू चल सकूंगा। लेकिन मैंने कोई फर्क नहीं पिया जी। पर आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे, इलाज चल रहा था, कोई फर्क नहीं, टोटली बेड पर चले गए थे। चले गए, हाँ जी। फैमिली पर निर्भर थे उस समय जी आप? सर, हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे आप चर्च आए? सर मेरे नाल दे दोस्त ने मैनू कहा कि तू चर्च जा, लेकिन उन्हें ये नहीं मैनू कहा कि तू कित्थे जाना। ये मैंने प्रभु ने मेरे ते कृपा की। मेरी गड्डी जिधर मैंने लाई खांबरा चर्च ला मैं गया, प्रभु के दास ने मेरे ते कृपा की। मैं अज दवाइयां तो राहत हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ जी। ये भाई जब इनको बताया गया तो कहते मुझे पता नहीं था, मैंने ड्राइवर को बोला कि मैंने चर्च जाना है। कहते वो मुझे सीधा खामरा चर्च यहाँ पर लेकर आए और उस दिन इनको इमरजेंसी यानी कि हीलिंग हॉल में बिठाया गया। 2 फरवरी 25 को जब ये वहां बैठे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना किया। ये पहले उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाकर सब प्रकार के रोग मैं उन्हें श्रापित करता हूं। व्हील चेयर के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। शिकंजों के रोगी चंगे हो जा यीशु के नाम में। सब प्रकार के रोग आपकी हड्डियों को, ब्लड को छोड़ के जाते रहे। मैं आपको हील घोषित करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। और भाई आप उस दिन वहां पर बैठे थे, प्रार्थना हुई, ऑयल अप्लाई किया गया, क्या महसूस हुआ था उस समय? सर मेरे शरीर के विचों बहुत तेज अग निकली, इन्नी अग निकली कि जो मेरे तो बर्दाश्त हुई बहुत मुश्किल नाल। फिर मेरे शरीर में ठंडक महसूस हो गई तो मेरा शांत कम हो गया। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और मेरा शिकंजा भी छुट गया, मेरी बेल्ट भी छुट गई। मैं बिल्कुल प्रभु के दास का धन्यवाद करता हाँ। उसी समय आप आगे आए, आपने इंस्टेंट टेस्टिमनी दी। तो जब आप आगे आए थे तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। जी सर। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। जी सर। ये जो हाथ में आपके बेल्ट हैं, ये बेल्ट लगी हुई थी। हाँ जी।
बेल्ट भी लगी हुई थी, शिकंजे का सहारा लेना पड़ रहा था हाँ जी, हाँ जी। आपको, और उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। जी सर। किसी चीज की जरूरत नहीं है ब्रदर। आप चल पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। आप चलिए अब सब जज हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप उस भाई को चलते हुए देख रहे हैं जो बेड पर चला गया था, पैरालाइज अटैक हुआ, चलने की कोशिश की तो गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी जो थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने इलाज किया पर कोई फर्क नहीं था। पर जब खुदा की हजूरी में आए, प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से ये भाई पूरी रीति से हील है, खुद चल पाते हैं, खुद उठ बैठ पाते हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। हाथ उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए सब जन हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज भी जितने जन बीमार हैं, परेशान हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, जहां ब्रांचेस में, जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास करें ये सामर्थ आपको बदलेगी। खुदावंद का मसा आपकी जिंदगियों को बदलेगा, कमजोर हड्डियां बल पाएंगी, हर बीमारी जाएगी, हर रोग खत्म होगा, खुदा आपको खड़ा करेगा। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस महान परमेश्वर को थैंक्स करें, तारीफ करें उस खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे। ये पुणे चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम विद्या है। पुणे चर्च ब्रांच की गवाही, इस सिस्टर का नाम विद्या श्री साथ है। इनकी गवाही है कि अक्टूबर 2017 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी को कंसीव करते थे तो इनका मिस कैरेज हो जाता था। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विद्या कुशल शिरसाट है। मैं पुणे ब्रांच में से बात कर रही हूँ। मेरी मैरिज 27 अक्टूबर 2017 में हुई थी और मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर हमारे फैमिली ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने फैमिली प्लानिंग के लिए 2018 में हमने शुरू किया। मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी थी 2019 में और उस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर 2019 में फर्स्ट अप्रैल 2019 में मेरा मिसकैरेज हुआ और जब डॉक्टर्स ने चेक किया मिसकैरेज के टाइम तब पता चला कि ट्विंस थे और ट्विंस मेरे नहीं रहे। तो उस टाइम मैं बहुत ही अपसेट थी और बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, हमेशा रोती थी और ये ख्याल हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तब उस टाइम मैं फिजिकली बहुत वीक हो चुकी थी और मेंटली अनस्टेबल। फिर जब मैं फैमिली फंक्शंस में जाती थी, मैरिजेस में जाती थी, तब दूसरे के बच्चों को देख के मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कब बच्चे आने वाले हैं, मेरे हाथ में कब मेरा बच्चा आने वाला है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और जब मैं मेरे रूटीन लाइफ में लगी थी तब YouTube में ऐसा ही देखने लगी और 21 जून 2020 में मैंने अंकुर नरोला पास्टर जी इनकी प्रेयर मीटिंग अटेंड की और बेबी ब्लेसिंग के लिए जो प्रेयर की थी मैंने वो रिसीव की एंड मैं कंसीव हो गई थी। जुलाई 2020 में मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और हेल्दी बेबी बॉय को डिलीवर किया और अभी वो 4 इयर्स कंप्लीट है। थैंक यू। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बरकत के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 21 जून 2020 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, तो जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसके कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने चेक किया ये बहन प्रेग्नेंट थे और मैरिज के 3 साल बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम रूथ है। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा के। 20 साल से आपको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। हाँ जी। कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, आप बताएं इसके बारे में। मेरे ब्रेन की प्रॉब्लम बचपन तो ही स्टार्ट हो गई सी ते मैं जब बचपन च खेड रही सी तो मेरे सिर ते एकदम इट लग गई ते उस तो बाद मैं जब खेड रही सी तो उस तो बाद मैं फील नहीं किया। जब फील किया तो फिर मैं जब स्कूल लगातार जाती रही
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪਾਸ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਜਦ ਰਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਔਰ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MR ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ MR ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦ MR ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਗਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। फिर हौली हौली मेरी मेडिसिन चलती रही। और जब 2010 में आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद भी ये सेम चीजें आपके साथ होती थी। आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर इसका क्या असर पड़ा? हाँ जी, उस तो बाद जब मेरी मैरिज हुई तो 2 साल बाद मैनू फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं मसीह घराने तो ही आ ते मेरी मैरिज भी मसीह घराने दे विच ही हुई आ। उस तो बाद जब मैनू ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मेरे पेरेंट्स ने दस दिता सी कि साडी बेटी नू ये ब्रेन दी प्रॉब्लम आ। तो आपने कितने उस समय हॉस्पिटल चेंज करके देखे थे? असी 2-3 हॉस्पिटल तक चेंज कर ली सी। और डॉक्टर्स बोलते थे कि लाइफ टाइम आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हाँ जी। दवाइयाँ खा खा के आप पूरी तरह थक चुके थे। हाँ जी। आपको क्या लगता था कि ठीक हो सकते हैं या नहीं? आपके मन में क्या आता था उस समय? बस मैनू टेंशन यही रहती सी कि मैं किद्दां हील होऊंगी, पर मेरा परमेश्वर ते मेरा फेथ सी। मैं प्रार्थना करनी, वचन पढ़ना, उस तो बाद मेरा सिर भी दर्द। इस तरह ही मेरी पढ़ाई ते भी मेरा काफ़ी ज़्यादा असर पिया। मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकी। और जब ये रोग बढ़ने लगा तो आपकी टांगों पर भी इसका बुरा असर पड़ना शुरू हुआ? हाँ जी, मैं तो चलिया भी नहीं जाता सीगा। क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी थी? हाँ जी। और जब आप चलते थे तो जैसे बुजुर्ग जैसे कुबड़े होके चलते, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी हालत आपकी हो चुकी थी? हाँ जी। तो इतना इलाज करवाने के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी। स्पेशल डॉक्टर चेंज करके हाँ देख जी, लिए? स्पेशल इस तो रीढ़ की हड्डी दे भी डॉक्टर एक्सरे वगैरह करवाए सीगे, लत्तां दियां भी मेडिसिन बहुत खाइया, कोई फर्क नहीं पिया। आपको फिर यहाँ का अंकुरनुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मेरे नानी जी ब्रांच मोगा विच सेवा करते आ, उन्होंने सानू इत्थे लेके आए। और जब ये चर्च में आए तो 30 जनवरी 2025 को इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, जिसके दौरान परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। उस ले हैंड को देखते हैं पहले। अब बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या बॉडी में फील किया आपने उस समय? मैनू बहुत ज़्यादा जो खुदा दे दास दा सामर्थी हाथ मेरे ते आया तो मैनू बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई। जब मैं अपनी सीट ते जाके बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा दे नाल भर गई। और उसके बाद जब आपने अगले दिन अपने आप को चेक किया तो क्या बदलाव, क्या फर्क दिखा आपको? हाँ जी, मैं सीधी भी चलन लग गई सी और मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा रिकवरी होनी शुरू हो गई सी। और जो ब्रेन के अटैक थे, दौरे पड़ते थे, वो सब बंद हो चुका है? हाँ जी, वो बंद हो चुके सी। हुण मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, ना कोई सिर दर्द दी दवाई खाती आ। तारीफ करें इक्लेसिया बड़ी। और 20 साल से 20 साल आपने अगर गवाही को सुना कि 20 साल से ये रोग था और डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए, ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही एक अभिषेक के नीचे आए
वो बीमारी, वो स्पिरिट इनके अंदर से निकल के गया। आज उस 20 साल पुराने रोग से ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है। आज भी ऐसे पेशेंट्स अगर यहाँ पे मौजूद हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे रोग हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप चर्च को अटेंड कर रहे हैं, आप वेट करें जब पर प्रेयर होगी स्टार्ट आपके लिए। आज उन बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जीवित गवाहियों को लेके वापिस जाओगे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। आप बताएं आपका नाम क्या है? पूजा। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली की। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या हुआ था आपके साथ 10 साल पहले? आपने खुद मेरे को अपने घर वालों से बाहर निकाल दिया था। मैं बहुत नशा करती थी, गुटखा खाती थी, बीड़ी पीती थी। आपको परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, क्या कारण था उसका? नशे के कारण। और आप ट्रांसजेंडर हैं? हाँ। और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी जब आप सुनोगे परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। कौन कौन सा नशा करते थे, कैसी जिंदगी थी आपकी उस समय? दारू पीती थी, गुटखा खाती थी, बीड़ी पीती थी, भांग खाती थी। और लोग क्या बोलते थे आपकी ऐसी हालत को देख के? मेरी बहुत मजाक करते थे और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। नशा करने के लिए पैसे जब नहीं होते थे तो कहाँ से अरेंज करते थे? लोगों से जबरदस्ती छीनती थी और गलत गलत विचार बोलती थी। और लोग भी आपसे नफरत करते थे? यस। ऐसी लाइफ जब आपकी हो चुकी थी, मन में क्या आता था? सुसाइड करने के लिए, और गलियों गलियों में घूमती थी पागलों की तरह और मरने के लिए सोचती थी। क्योंकि घर वालों ने पहले ही छोड़ दिया था और नशे की वजह से उन चीजों से पाप में पूरा जीवन जा चुका था। यस। आपको फिर परमेश्वर ने कैसे बचाया? यहाँ का चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ? एक दे दी और उसने मुझे बताया कि अंकुल नरोला बिराज में आप देखो, आपकी हालत ठीक हो जाएगी। और मैंने प्रभु को दिल से प्रार्थना को रिसीव किया और मैं पूरी तरह से हीली हो गई। और आपने जब चर्च में आके प्रेयर को रिसीव किया तो एकदम से आपको वॉमिटिंग, उल्टियां आनी शुरू हुई? यस यस। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या बदलाव देखा आपने? ठंडक सी महसूस हुई। और उस दिन के बाद से जो नशे थे वो सारे खत्म हो चुके थे? यस यस। नशों से आजाद है, पाप भरी जिंदगी से आजाद है, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं और परमेश्वर ने नया जीवन दिया आपको। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में, क्योंकि परमेश्वर हर एक जन से वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लिखा जो कोई उसके पास आया परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, उसको निकाला नहीं, उसको ठुकराया नहीं, उसको आजाद किया। उसको उन पापों से, उन गुलामी से, उन नशों से, बीमारियों से यीशु मसीह ने चंगा करके एक नया जीवन दिया। आज जो लोग प्रेयर को देख रहे हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करता है। आप भाई हैं, बहन हैं, किन्नर हैं, एनीबॉडी, आपका फेथ उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको हील करके आपको एक नया जीवन देने की ताकत रखता है। तो अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। मेरा नाम विभ है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। ओके, तो आपकी टेस्टमनी की 21 अक्टूबर 2012 में आपकी मैरिज हुई थी जी। तो उसके बाद बताएं कि क्या टेस्टमनी आपकी? 2012 में मैरिज हुई तो मैं चाहती थी कि मेरे को एक बेबी हो, लेकिन मुझे बेबी नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने 20-25 डॉक्टर भी चेंज करे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करी तो परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ 7 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मेरी बड़ी डिजायर थी कि परमेश्वर मेरे को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करे। 25 सितंबर 2022 को मैंने व्हाइट कार्ड बनवा के ले हैंड करवाया। अच्छा, जब आपकी मैरिज हुई थी, सिस्टर बता रहे कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस इनके आई कि 7 साल ये सिस्टर एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए,
चर्च के बारे में पता चला और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इस बहन ने ऑनलाइन जयपुर से, राजस्थान से इस बहन ने ऑनलाइन चर्च को देखना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने आपको एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ पहले आपको ब्लेस किया जी। तो उसके बाद आपकी इच्छा थी कि परमेश्वर आपको बेबी गर्ल के साथ भी ब्लेस करे जी। तो आप बता रहे कि सेकेंड टाइम भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब मेरा बेटा 3 साल का हो गया था तब मैंने सोचा कि परमेश्वर मेरे को एक और बच्चे के साथ ब्लेस कीजिए। मेरी बड़ी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर मेरे को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करे। 25 सितंबर 2022 को मैंने वाइट कार्ड बनवाया और ले हैंड करवाया। मम्मा जी ने मेरा ले हैंड करा और मैंने बेबी गर्ल के लिए ले हैंड करवाया था तो परमेश्वर ने मेरे को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आपकी फैमिली को परमेश्वर ने कंप्लीट किया। थैंक्स करें परमेश्वर इस गवाही के लिए। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आपके मनोरथों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका फेथ आज परमेश्वर के ऊपर होगा, तुम्हारा विश्वास है, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज पूरी होंगी उसी के सामर्थ्य नाम में। आज आपके बंद रास्ते ओपन होंगे और आप अपनी गवाही को लेकर नाच से झूमते हुए अपने घरों में वापस लौटोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलविंदर कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? अमृतसर से। 15 साल पहले जब आप 9th क्लास में स्टडी कर रहे थे किसी ने जादू टोना किया था आपके ऊपर। आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी उस जादू टोने के बाद? क्या अटैक्स होते थे? क्या प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ा उसका? हाँ जी ब्रदर। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਲੌਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਨੀਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟ नहीं करवाया। मतलब हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ऑपरेशन करवाने तक पहुंच चुके थे। और आपको ये लगता था कि जब अटैक होते थे कई घंटे आपको होश ही नहीं आता था। जी ब्रदर। आपको फिर परमेश्वर ने कैसे आजाद किया, कैसे इन चीजों से फ्री हो पाए आप? जी ब्रदर फिर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਲੂਨ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। और जब ये लगातार चर्च में आते गए तो एक दिन एक कलीसिया में खड़े थे और परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी आपके ऊपर। उसको हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। In the name of Jesus, out, come out, in Jesus' name, out, 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 out. वो तुम्हें छोड़ के जा रही और तुम हील हो रही, तुम्हारी बॉडी में से दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही। आज तुम्हारा दिन है और तुम आजाद हो।
थैंक यू लॉर्ड। सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, इविल, लास्ट डे है तुम्हारा आज। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी। मैंने लोगों को दुष्ट आत्मा में लौटते हुए और फिर खुदा की सेवा में खड़े होते हुए देखा। सिर्फ आजाद नहीं होंगे, खुदा की सेवा करेंगे। यस, मैं छुटकारे के वचन को तेरे लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं और यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा छुटकारा आपका। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई और परमेश्वर के दास ने जो वर्ड्स आपको दिए, उसके बाद क्या बदलाव देखा फिर आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। और अभी कितने महीने हो चुके बिल्कुल फ्री हैं अब इन चीजों से? ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਆਜ਼ਾਦ ਆ। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई सीजर अटैक नहीं है, कोई अटैक नहीं आ। तारीफ करें कलीसिया इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया, जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? साक्षी। रहने वाले कहाँ के आप? मोगा से। जनवरी 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जब पीरियड्स इरेगुलर हो गए, उसके बारे में बताएं आप सारा। 2020 में मेरी शादी हुई। 2020 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 2 साल बाद बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, तो 2023 में मुझे बच्चे की प्रेगनेंसी कंसीव हुई। उसके बाद एक महीने बाद बच्चे मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या कारण है इस चीज का? बच्चे में उसमें रसौली थी, राइट ओवरी में रसौली थी, पानी वाली 4 पानी वाली रसौलियां थी उसमें। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेडिसिन खाने पड़ेंगे। तो आपने डॉक्टर भी चेंज किए उस समय? हाँ जी, 2-3 डॉक्टर चेंज किए थे। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं था? नहीं। और जब लोग पूछते होंगे बेबी के बारे में, फैमिली वाले? हाँ जी, फिर तो सब ताना मारते थे, मम्मी पापा भी पूछते थे। और आप बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे उस समय। फिर जब आपको यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम हुआ, चर्च में आना शुरू किया आपने, तो 25 दिसंबर 2023 की इन्होंने क्रिसमस मीटिंग को अटेंड किया था। और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं है अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहां मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहां है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहां मौजूद है और आपके बेबीज नहीं हैं, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। जब आपने पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया, तो कितने हफ्ते के बाद आप प्रेग्नेंट थी? उसके बाद 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर सकी। और प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा। हाँ और 4 साल की शर्मिंदगी खत्म हुई और परमेश्वर ने बेटी हाँ के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करें कलीसिया इस ब्लेसिंग के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रजनी। कहां से हैं आप? पठानकोट से। अगस्त 2023 में आपकी मैरिज हुई। यस। और मैरिज के 2 मंथ के बाद आप प्रेग्नेंट हुए थे। यस।
प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही थी, पर 8 मंथ में जाके एकदम से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या हो रहा था, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। मैं ना प्रेग्नेंट थी, तो मैंने ना तीसरे मंथ की स्कैनिंग करवाई, तो मेरी ना ओल नीचे आई, तो डॉक्टर ने ना प्रॉपर ही बेड रेस्ट बता दी थी हमें। तो मैं ना चर्च आती रही, तो विश्वास के साथ चर्च आती रही। फिर मतलब कि ठीक 5 मंथ की मैंने स्कैनिंग करवाई, फिर मैं ठीक हो गई, ऑल ऊपर चली गई। उसके बाद ना 8 मंथ में ना मेरे को बहुत ज़्यादा ना सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो डॉक्टर कह रहे थे कि बेबी का ना वेट ज़्यादा इसलिए आ रही है। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो मेरे को अपने से ना बेबी का ज़्यादा डर लगता था, इसको कुछ हो ना जाए। तो फिर ना हम एक हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे ना हमें 5 दिन में एडमिट रही, तो उन्होंने कोई भी मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं मिली। तो मैं बड़ी परेशान थी। हम बिना बताए डॉक्टर को घर आ गए, 2 हॉस्पिटल गए हम, उनसे हमें जवाब मिल गया। तो हम बड़े परेशान थे कि कोई केस नहीं कर रहा। क्यों डॉक्टर जवाब दे रहे थे, क्या हुआ था? डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे को सांस की बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, मैं बड़ी प्रॉब्लम में थी, बड़ा रोती थी। मैं प्रेयर में जुड़ी रही, माउंटेन प्रेयर के साथ। फिर 8 मंथ में तो मम्मा ने ना मेरे झूम पे ले हैंड की, मम्मा ने मेरे, तो 9 जून को ले हैंड की। फिर 28 जून को मेरे को बेबी गर्ल से बेबी प्लस किया यीशु ने। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। डॉक्टर बदले गए, 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, पर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, बार बार इलाज किया, एडमिट भी रहे हॉस्पिटल, पर कोई फर्क नहीं था। और आप और आपका परिवार बहुत ज्यादा परेशान थे। फर्स्ट बेबी था, पर आप पहले से प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु पे था। और आपने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर के लिए रजिस्ट्रेशन किया। और जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया 9 जून 2024 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। प्रभु आज इन्हें शिफा दे, परमेश्वर ब्लेस करें। हर तरह का रोग, क्रिटिकल पेशेंट जो है, सारे रोग खत्म हो जाएं। हर तरह का रोग से मैं फ्री करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का रोग, सारी इन्फेक्शंस खत्म हो जाएं। बहन, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, क्या हुआ था उस समय? उस समय फिर मेरी हीलिंग होनी शुरू हो गई, तो मेरे को सांस ठीक आने लगी। तो फिर हम गए प्रेयर करके, घर से गए हम करवाने के लिए भी केस, तो फिर उन्होंने कर दिया था कि, यानी कि पहले डॉक्टर आपको जवाब दे रहे थे, वो उन्होंने आपको मना कर दिया था, पर जब प्रार्थना हुई, जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, तो आप हॉस्पिटल जब गए तो उन्होंने आपको वहां रखा। और 28 जून 2024 को हेल्थी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। एकदम से नॉर्मल है बेबी। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है, हालत खराब होती जा रही थी, सांस नहीं आ रही थी, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप चले जाओ, कहीं और चले जाओ। 2-3 हॉस्पिटल बदले गए, पर जब घर चले गए, प्रार्थना हुई, दोबारा डॉक्टर के पास गए, सारा कुछ नॉर्मल हो चुका था। और वहां जाके परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाथों को उठाते हुए जीवत परमेश्वर के नाम को चर्च महिमा दे, क्योंकि अगर जिसने आपको ब्लेस किया है वो परमेश्वर अगर आपके साथ है, रिपोर्ट कुछ भी कहे, डॉक्टर कुछ भी कहे, खुदा आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने देगा। ना तो निराशा रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना दुख रहेगा। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। थैंक यू जीसस बोले ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन हालेलुया ऊंची आवाज के साथ। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते